Good morning, my dear student. Today we will continue your class 8 SST, chapter 6 in Geography, Human Resource. In this chapter, we had discussed in your previous class the topic population change. In that topic, we discussed that what is the reason behind the population change, what is the reason behind the growth of population day by day, and we have also discussed figure 6.3 which is given in your book, world population growth. Dear student, when we discussed this topic, we thought that what is the reason behind that, why the population grow in huge amount, at a high rate, because the main reason of this growth was that with the better food supply and the medicine, death were reducing while the number of birth still remained fairly high. I have also discussed the definition of death rate and birth rate. The birth rate, it means birth rate usually measured using a number of live birth per 1,000 people, and death rate also measured using the death rate, the number, I mean to say that the number of death per 1,000 people. I have also discussed the migration. Migration is the movement of the people in and out of area. And what is the meaning of natural growth rate? Where I discussed the difference between the birth rate and the death rate of the country is called the natural growth rate. I have also discussed in my previous video the meaning of immigrants and immigrants. Immigrants are the people who leave a country, and immigrants are those who arrived in country. Countries like the United States of America and Australia have gained what? It means the countries like United States of America and Australia have gained in number in migration or immigration. Sudan is an example of country that has experienced a loss of population number due to out migration or immigration. Difference between immigration and immigration. EMIGRATION and IMMIGRATION. Difference, immigration, IMMIGRATION. What is the meaning of immigration? Immigration, it means what? Who arrived in country, that is called immigration. Suppose कोई आपके देश में आए, वो इमिग्रेंट्स हुआ, प्रवासी हुआ, और जो आपके देश से चला जाए दूसरे देश में रहने, आई होप इसको आप और इजी वर्ड में समझें कि प्रवासी और अप्रवास या उत्प्रवासी कौन होते हैं. प्रवास एक मतलब इट मीन्स इमिग्रेंट्स जो होते हैं, माइग्रेंट्स जो होते हैं. माइग्रेंट्स इज अनदर वे टू विच पॉपुलेशन साइज चेंज. माइग्रेशन भी पॉपुलेशन साइज को चेंज करता है, बदलता है. कैसे? ये कारण है जिससे पॉपुलेशन के आकार में परिवर्तन होता है. लोग एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं. जो इमिग्रेंट्स हैं, EMIGRANTS, इमिग्रेंट्स आर पीपुल हु लीव ए कंट्री. इमिग्रेंट्स क्या करते हैं? इमिग्रेंट्स अपने देश को छोड़ देते हैं. इमिग्रेंट्स वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और इमिग्रेंट्स वे होते हैं जो देश में बाहर से आते हैं. IMMI, इमिग्रेंट्स वे हैं जो क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव्ड इन कंट्री. तो कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैविंग गेन इन नंबर ऑफ इन माइग्रेशन. जो दो देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है. और फिर सूडान एक ऐसा देश है जिसमें
लोगों के बाहर चले जाने के कारण उस देश की जनसंख्या में कमी हो गई. Why? What is the reason behind that? No doubt to say that in Sudan, the essential requirements that is not fulfilled. Medical facility is not available. Security also not available. Pure water is properly not available there. So that's why the Sudan problem. What? Sudan have faced the problem of which problem? Sudan have faced the problem of Sudan experienced the immigration. Sudan जो है वो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम से फेस कर रहा है या आउट माइग्रेशन. We can say the general trend of international migration is from the less developed nation to the more developed nation in search for better employment opportunities. Within countries, largest number of people may move from the rural to urban area in search of employment, education and health facility. Here one question. Why the immigration and immigrants happened? क्यों देश में लोग बाहर से आके बसते हैं और देश छोड़ के चले जाते हैं? क्यों सूडान में लोग बाहर चले गए और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग अंदर आके बसने लगे? What is the reason behind that? If you analyze the actual reason, then you can easily understand what is the problem, what is the situation behind that. क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इन चीजों को आप समझ जाएंगे. जो ये द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास की प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल माइग्रेशन की जो समस्या है, इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन. ये लेस डेवलप्ड कंट्री के अंदर है. द मोर डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड. माइग्रेशन लेस डेवलपमेंट से मोर डेवलप्ड देशों की तरफ तेजी से हो रहा है. नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल में मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया in search of employment, education and health facility. As I told you, the essential requirement is must for human beings. Everyone want the better facility, better privileges. So that's why they migrate from the less facility area to higher facility area. I mean to say that कि less developed to higher developed area. उन देशों से जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है उनकी तुलना में उन देशों में जाके बसना पसंद करेंगे जहाँ पे देश में ये सारी सुविधाएं हैं. इसमें जो ये प्रवास हो रहा है, सामान्य प्रवृत्ति जो माइग्रेशन की है, इंटरनेशनल माइग्रेशन की, उसके पीछे का कारण क्या है? ये आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्र से अधिक विकसित राष्ट्र की तरफ चले जाते हैं. कम विकसित कंट्री से अधिक डेवलप्ड कंट्री की तरफ ये माइग्रेट कर जाते हैं. देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं. सो दैट इज द रीजन. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. इन दिस टॉपिक वी विल रीड व्हाट, हाउ द पॉपुलेशन rate is different in the other regions in worldwide level. विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में पॉपुलेशन पैटर्न अलग अलग क्यों है? Rates of population growth vary across the world. Although the world total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. Kenya have high population growth rate. They had both high birth rate and death rates. Now with improving health care, death rates have fallen, but birth rate still remain high, leading to high growth rates. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death and low birth rates. Okay, pattern of population change. If you will minutely read this paragraph, you can easily understand
that what is the reason of the high growth rate in population. You have seen here the developing country or the less developing country where the population growth rate that is very high. Why? Because birth rate is high. Finest example given here, the Kenya. Kenya have high population growth rate. Similarly, the high death rate. But after some time, we have seen the medical facilities available there. वहाँ धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी की उपलब्धि मिली. सो बर्थ रेट इज हाई रिमेन, अभी भी जारी है, बट डेथ रेट दैट हैज कंट्रोल, उसको कंट्रोल किया गया. तो क्या होगा? व्हाट्स रिजल्ट द ग्रोथ रेट इफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. जनसंख्या के क्या सेटलमेंट्स में प्रभावित करेगा वो. The rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. सभी देशों में, विश्व के सभी जगहों पे जनसंख्या की वृद्धि की दर अलग समान नहीं है, अलग अलग है. विश्व में कुल जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि एक समान अनुभव नहीं की जा सकती. सभी देशों में एक तरह की वृद्धि नहीं हो रही पॉपुलेशन में. कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या की दर काफी ऊंची है. उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही उच्च हैं, हाई है. हाल में मेडिकल फैसिलिटी में सुधार के कारण डेथ रेट में कमी आई, परंतु अभी भी जन्म दर ऊंची बनी हुई है. इसमें वृद्धि डे बाय डे बढ़ रही है. तो जनसंख्या ऑब्वियसली केन्या की बढ़ जाएंगी. और अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम जैसे देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है. इट मीन्स इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट. पॉपुलेशन कंपोजिशन. नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन कंपोजिशन. What is the meaning of population composition? Population composition it means in हिंदी अगर समझना चाहें तो इसको कहते हैं जनसंख्या का संगठन होना. जनसंख्या एक साथ क्या करेगी? संगठित होगी. ओके, सो पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन. हाउ crowded a country has a little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. What is the reason behind that? Have you think about that? Why Japan that is more economically developed than Bangladesh? क्यों जापान ज्यादा डेवलप्ड है बांग्लादेश की तुलना में? किसी भी देश की जनसंख्या जितनी भी अधिक हो, उससे उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता. जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी इसका यह मतलब नहीं कि वो इकोनॉमिकली उतना ही पावरफुल है, रिच है, प्रॉस्परस है. जनसंख्या ज्यादा या कम इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट को शो नहीं करती. Finest example you have. First, Japan and second, Bangladesh. Both countries have highly densely populated country. But the situation of Bangladesh and situation of Japan, I mean to say that economically situation. What is different between Japan that is more economically developed than Bangladesh? To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. People
very greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation, and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refer to the structure of the population. Here author clearly inform you about that on which basis we can define that this group is the, we can say the particular group is as a human resource. He gave you information that we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation, and their income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refer to the structure of the population. It means अगर समझे इस चीज को तो author want to what suggest you that the situation on the basis of that you can easily understand that कि वो ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं और ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या चाहिए. एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों को जानने की आवश्यकता है. लोग अपनी एज, अपने जेंडर, इट मीन्स सेक्स, अपनी लिटरेसी रेट, अपने मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ कंडीशन और अपने ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल, ये सारी चीजें, ये सभी दशाएं, स्वास्थ्य की दशाएं, व्यवसाय, आय का स्तर एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं. अगर आप देखें तो आपके भी देश में, आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जिनका स्वास्थ्य एक तरह नहीं होगा, जिनकी उम्र एक तरह की नहीं है, जिनके व्यवसाय एक तरह के नहीं है, जिनका इनकम लेवल एक तरह का नहीं होगा. सब अलग अलग ग्रुप्स के होंगे, सबके अलग अलग लेवल्स होंगे और ये जानना बहुत आवश्यक है. द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इट मीन्स जो जनसंख्या का जो संरचना है उसे समझने के लिए कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन क्या करना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what their income level and health condition are. और जनसंख्या की इस संरचना को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें जनसंख्या के संगठन के बारे में ये जानना पड़ेगा. ये जानने में सहायता करता है कि कितने मेल और कितने फीमेल हैं, वे किस उम्र के और किस एज ग्रुप के हैं, उसमें कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने नॉन एजुकेटेड हैं, किस प्रकार का ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व है, उनका इनकम लेवल क्या है, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, मेडिकल उनके पास फिटनेस कैसी है. ये सारी चीजें हमें एज ग्रुप, हमें उस पूरे पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने में मदद करती है. एक देश की जनसंख्या की कंपोजिशन, इट मीन्स पॉपुलेशन कंपोजिशन का स्टडी करने के लिए जो सबसे रुचिकर विधि है वो जनसंख्या पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है, जिससे आयु, एज, सेक्स, इन चीजों को आसानी से समझा जा सकता है. इट मीन्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, आल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड शो, population pyramid, population pyramid, if you see in your book such type of structure, given here, that is the percent, and here what, male and female,
if you will see this pyramid, then you can easily, this is the pyramid. It is also shown in your book, the population pyramid figure 6.6. If you will see in your book population pyramid, the population, on behalf of the population pyramid, we can easily understand what the population composition of the country. The population pyramid show the total population divided into various age groups, 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of the total population subdivided into male and female in each of those groups. Here cartoon given, a picture. What is the triangular looking diagram of one lad asking this question to a girl? Girl replied, "This is a population pyramid." एक बॉय पूछता है कि ये जो ट्रायंगुलर डायग्राम है ये क्या दिखा रहा है, व्हाट इट शो? गर्ल बोलती है, लड़की कहती है कि ये जनसंख्या पिरामिड है, दिस इज द पॉपुलेशन पिरामिड. कैन आई प्ले, व्हाट इज दैट? बच्चा पूछता है व्हाट इज दैट, कि ये व्हाट डू मीन बाई, इट मीन्स व्हाट डू मीन बाई द पॉपुलेशन पिरामिड, व्हाट इज दैट, ये क्या है? गर्ल आंसर देती है, इट शो द परसेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द कंट्री along with their age groups. व्हाट इज ए? कहती है एक देश में पुरुष, मेल और फीमेल, उनकी कितनी संख्या है, उनका कितने नंबर है, किस एज ग्रुप्स के हैं, इनको इस पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू दिखाया जा सकता है, शो किया जाता है. कैन आई प्ले अ डिक्टेटिव एंड द इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री? लड़का खुश होकर पूछता है कि क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूं? हैविंग सीन दिस पिरामिड, इट मीन्स having seen this pyramid, lad got stuck and he asked the question, can I play dictative and investigate the population of the country? Girl replied, yes, let's study 3 countries. कह रही है, लड़की कहती है हाँ, आप इसे जरूर समझ सकते हैं, हम 3 देशों का अध्ययन कर सकते हैं. ऑन द हेल्प ऑफ दिस पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड की सहायता से हम 3 देशों की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. ओके, यहां पे एक कार्टून के रूप में आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड जनसंख्या में किस ग्रुप के, उनके वेरियस एज ग्रुप्स को शो करता है. द परसेंटेज दैट टोटल पॉपुलेशन द सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स. The shape of the population pyramid tells the story of the people living in the particular country. The number of the children below 15 years are shown at the bottom and they reflect the level of birth. The size of top show the number of what? Aged people above 65 years and reflect the number of death. This is the very important thing which you have to understand. दिस इज व्हाट कहता है कि पिरामिड में जो दिखाया गया है, पिरामिड में जो शो किया जा रहा है, उसमें बर्थ और डेथ दोनों को शो कर रहा है. कहता है कि पिरामिड में दिखाई गई ये जन्म के लेवल को दिखाती है. ऊपर का आकार, टॉप का जो है, वो ओल्ड पर्सन को दिखाता है जिनकी उम्र 65 के ऊपर है, और कहता है कि इनकी संख्या दिखाता है, और डेथ जितने लोग मरे उनकी संख्या को दिखाता है. जनसंख्या पिरामिड जो है, जनसंख्या पिरामिड की सहायता से कई सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं. एक जनसंख्या पिरामिड जो पॉपुलेशन पिरामिड्स है, इसमें कुल पॉपुलेशन में वेरियस एज ग्रुप्स को डिवाइड करके समझाया गया, 5 to 9 एंड 10 to 14. सेकेंड, तो टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज के आधार पे मेल और फीमेल कितने हैं इन्हें क्लियर किया गया.
एंड थर्ड, कहता है कि जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कुल कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 ईयर्स के नीचे कितने लोग हैं, साथ ही साथ 15 साल से कम जितने लोग हैं नीचे दिखाया गया है, लोअर बॉटम लेवल पे, और जो 65 ईयर्स के हैं उनको टॉप पे दिखाया गया है। डेथ रेट भी वहीं दिखाई गई है, डेथ भी दिखाई गई है। और अब जो जनसंख्या पिरामिड है वो एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जनसंख्या पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड की सहायता से आप क्या समझ सकते हैं आप? पॉपुलेशन पिरामिड्स, द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन द कंट्री। कितने डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं, इनको भी पॉपुलेशन पिरामिड क्लियरली शो करता है, बता देता है। ये पॉपुलेशन डिपेंडेंट लोग कौन है? तो कहता है कि जनसंख्या पिरामिड में जो ये बात कहता है कि इसमें जो युवा आश्रित लोग 15 की एज से कम, और डिपेंडेंट में दो ग्रुप के लोग आएंगे। पहले जो 15 साल से कम के हैं और दूसरे जो 65 साल से अधिक के हैं। इट मीन द एज ग्रुप अब बिलो 15 एंड above 65. That groups is called dependent groups. With the help of the population pyramid, you can show, you can easily show, and what indicate in the map also, pyramid also. pyramid में आप इस चीज को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से इनका distributions हैं. It is a very easy medium to show, to indicate the actual condition of population of any country with the help of the population pyramid. These are two groups of the dependents: young dependents aged below 15 years and the elderly dependents aged over 65 years. Those of the working age are the what? Economically active. इसके बीच का जो एज ग्रुप है वो वर्क कर रहा है, वो वर्किंग है. They call the working groups. It means here two things: below 0 to 15 or 15 years, and next group upper 65 years, old people and young people. Here young people 15 ईयर्स से कम, यंग और 65 के ऊपर ओल्ड, दैट ग्रुप इज कॉल्ड डिपेंडेंट ग्रुप. एंड बिटवीन देम इट मीन्स 16 to 64, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिव ग्रुप. दैट इज एक्टिव ग्रुप. एक्टिव ग्रुप, देयर रोल इन इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट. अर्थव्यवस्था में इस ग्रुप का, दैट इज एक्टिव ग्रुप, दैट इज द वर्किंग ग्रुप, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, कंट्रीज इकोनॉमी. देश की अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है. तो यहां पे हम लोगों ने दो चीजें समझी. फर्स्ट, द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन कंट्री. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ द डिपेंडेंट्स: यंग डिपेंडेंट्स बिलो 15 ईयर्स एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स एज ओवर 65. ओवर, एज ओवर, यहां पे लिख दें एज ओवर, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में. एज ओवर 65 ईयर्स, 65 साल से ऊपर के लोग. एल्डरली डिपेंडेंट्स, दैट इज यंगर डिपेंडेंट्स. एंड बिटवीन 16 to 14 they call active dependents. It means with the help of the pyramids we can easily understand, we can easily categorize what the age, on the basis of age, various age groups, 5 to 9 years, 10 to 14 years, and the percentage of the total population subdivided into male and female in each those groups. We can also divide it what? The dependent group also. We can show very easily with the help of this pyramid. This is very interesting. Okay, आज के लिए इतना ही. I think you can understand what is the meaning of population pyramid. We will discuss again my next video. Goodbye and take care.